all of us welcome Anshuman Khaitan. He has something really valuable. I have really pulled him out of a vacation. He is on eternal vacation, but I pulled him out on a vacation. Anshuman is a great guy, and I really want you to give him your full attention now. Okay, yes, Anshuman. And Anshuman, आपकी मेरी हमेशा होती थोड़ा सा इसको छोटा रखना. Okay, okay, guys, let's get going. Thanks. This was so nice to see you after so long, and thanks for the lovely welcome, everyone. Sir, मैं छोटा नहीं रखूंगा. You ate into my time. Okay, sorry. Okay, so sir, before I begin, let me tell you a great news that in spite of my factory being shut for 3 months last year, we managed the maximum profit that our factory has ever made in 9 months of working. My EBITDA was 38%, and the main reason was not just the flow chart and checklist, but also the fact that you changed me as a human being, and I could, through your science, transmit all the energy to my people because of whom this could be achieved. Hi everyone, मेरा नाम अंशुमन खैतान है और मेरी फैमिली 2 schools own करती है नोएडा में, known as the Khaitan School, and we have a sulfuric acid plant in Rampur. मैं sulfuric acid plant चला रहा हूँ और मेरा भाई schools चला रहे हैं. मेरे भाई और मैंने इस कोर्स को एक साथ किया था and we graduated in February 2019. Sir, I hope it's all right if I talk in Hindi and English. Hindi and English both mix, yes. Oh, great, sir. So let me clarify. I have come here to share my experience only. So everything I'm saying is 100% experience over the last 39 months that I spent with sir. My life was completely wasted. And it took a 180-degree turn. But we had to do what RJ sir said without applying our mind. Let me tell you about my life and what it was till 19th April 2018 when I attended Sir RJ sir's one-day class. मैं एक सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, एक केमिकल प्लांट चला रहा था रामपुर में, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और बहुत ही मंडेन और अनइंटरेस्टिंग बिजनेस है, जिसमें हम एक कमोडिटी बनाते हैं. When I started this plant, it was a shut unit, and over the years, I made it a successful business. और फिर मेरा पेट भर गया, and there was no motivation to work. मेरे पास कोई motivation इसीलिए नहीं था काम करने के लिए, क्योंकि resources हरदम हमारे family के पास थी. When I look back today, I can say I had totally stagnated in my mind and my life, and I was leading a heavily consumptive life. I just wanted to be a national level golfer and was wasting all my time pursuing my hobby, partying, holidaying, और अपनी सारी responsibilities से मैं दूर भाग रहा था. मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था. मैं अपने फैक्ट्री 45 दिन में एक बार जाता था, और सर आज के डेट में भी मैं 45 दिन में एक ही बार जाता हूँ. But there is a huge difference between both the reasons for my absence, which I will explain to you later on. Mine is a continuous process plant, and I'm producing 120 metric tons of sulfuric acid a day. I used to have a storage capacity of only 5 days. So philosophy ये होती थी कि भैया अगर sulfuric acid नहीं बिक रहा है तो प्रोडक्शन कट कर दो, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्शन कट कर लो, बस जैसे तैसे करके प्लांट को चलाते रहो. There was complete mayhem. The entire plant was being run on जुगाड़ to the extent that जब मैं ये BCI का कोर्स लॉन्च किया अपने फैक्ट्री में पहली बारी, आई थिंक अप्रैल मई जून 2019 में, तो मेरे जो जनरल मैनेजर साहब है वो आके मुझे बोले कि साहब आप ये कर क्या रहे हैं सबके सामने, ये कौन है राहुल जैन, और ये आपने आप कर क्या रहे हैं, कहाँ से आ गए ये गुरु. मैं ये पूरा प्लांट पिछले 16 साल से, my plant is 32 years old, he's been there for last 16 years. He said that मैं ये प्लांट पिछले 16 सालों से जुगाड़ पे चला रहा था, आप मुझे जुगाड़ पे ही चलाने दीजिए, हमें नहीं करना ये कोर्स. This was the mentality of the people. Anyone could purchase anything at any time, and it had to be sanctioned by me sitting in Delhi. Indents ऑफिस के ड्रॉर में 2-2, 3-3 महीने तक पड़े हुए रहते थे, और सारी चीज केवल इमरजेंसी पर खरीदी जाती थी. HR का कोई सिस्टम नहीं था, कोई भी कभी भी आ जा सकता था. जनरल मैनेजर साहब को कोई आइडिया ही नहीं था कि फैक्ट्री में क्या चल रहा है, और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क वाज अनबिलीवेबल. माय फैक्ट्री इज इन रामपुर, रामपुरी चाकू वाला रामपुर, मुरादाबाद के आगे. इट वाज रैंक्ड द वर्स्ट सिटी इन 2019
in the Times of India headlines when I was undergoing this course with Sir. The worst city in India, Rampur was ranked as #1. You can look it up in the archives. डिस्पैच करते वक्त डिस्पैच लेबर डिसाइड करती थी कि सल्फ्यूरिक एसिड किस पार्टी को आज दिया जाएगा. कोई लेबोरेटरी नहीं थी, कोई टेस्टिंग नहीं था. जीएम साहब के चेंबर में उनका पियोन को उन्होंने टेस्ट करना सिखा दिया था, तो वो टेस्ट करता था कि सल्फ्यूरिक एसिड की टर्बिडिटी क्या है. सारे पेमेंट्स रिलीज होते थे विम्स एंड फैंसीज ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर, और सारे अप्रूवल्स तभी मिलते थे पेमेंट की जब बड़ा साहब यानी मैं दिल्ली में बैठ के साइन करता था. I remember that in the middle of the night, my people used to be running around for diesel for the generator because we never kept any stock. I mean, I don't know what to tell you guys, just how bad the things were. The entire effort was just to keep the plant running under any circumstances. Plant में आज तक तब तक कभी पेंटिंग नहीं हुई थी. अगर कभी भी कुछ लीकेज होता था तो रंधा मार के, रेड ऑक्साइड मार के हम प्लांट को चलाते थे. 30 साल तक यहाँ पे मेरे लोग थे. आज भी राघवेंद्र गुप्ता, he is my general manager commercial. He started in a very low post. जब नींव खुदा था फैक्ट्री का, तो आज वो भी आए हैं यहाँ पे सुनने के लिए कि सर कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं. राघवेंद्र जी, अगर कहीं पे कुछ आपको लगता हो तो प्लीज टॉक दीजिएगा कि नहीं साहब आप ठीक नहीं बोल रहे. सो 30 साल तक इन लोगों ने अपने सिस्टम्स चलाए एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. राम राज चल रहा था फैक्ट्री में. मेरे रिलेशनशिप मेरे स्टाफ के साथ ये था कि ये लोग काम चोर हैं और इन्हें लगता था कि साहब बहुत बड़े चोर हैं. Basically, there was a lack of interest because this was not even a small percentage of our main business. तो बस चलाते रहो गाड़ी, बैलगाड़ी को धक्का मारते रहो. Then my brother Vedant Khaitan pushed me, so I attended the one day of Rahul Jain ji on the 19th of April 2018. मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं जब मैं 19 अप्रैल 2018 के बारे में सोचता हूँ, जिस वक्त मैंने इनका वन डे किया था और क्या जिंदगी मेरी बदली उसके बाद. आई रिमेंबर सर सेइंग, दिमाग घर पे छोड़ के आइएगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. 8 months that sir trained me. I have attended his 4 day, उनकी 8 महीने की कोर्स और 10 मैनिफेस्टेशन क्लासेस मैंने इनके यहाँ अटेंड की. आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हो. अगर बोर हो रहे होगे तो प्लीज ताली बजा दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा. सो शुड आई कंटिन्यू गाइस? एक मिनट, मैंने वो कमेंट्स ऑफ किए. गाइस, अंजुमन जरा दिल से बात करता है. So let the comments keep coming, sir. Okay. Great. Let me share a little of what I implemented over the past 3 years. I have stayed in the factory from January 2019 till December 2019, from Monday to Friday. You have to do it. There are no shortcuts to life. 40 साल बहुत ऐश किया ना जिंदगी का. 2-3 साल दे के इसको ऐसा ठीक कराऊं कि अब ऐश के अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूं. मेरा स्टाफ यहाँ मेरे साथ है आज घर पे. इतने इरिटेटेड है सर, वो एक बार कंप्लेन भी करेंगे आप. I have hired 34 new people and I have removed only 2 people in the past 3 years. The 34 new people, जो 34 नए लोग मैंने रखे हैं, वे लोग 8 से 10 से 12 हजार रुपए के लोग, क्योंकि बस वही लोग फैक्ट्री को चला रहे हैं. 26 पार्टियां मैंने की अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अक्टूबर 2018 से लेके अभी तक, जहां पे लाइव सिंगर्स, टेंटेज, केटरिंग, गिफ्ट्स, partying till 5 in the morning with 26, 27 of my friends. Now we are best of friends. और इसका एक वीडियो बनाया हमने, वो आपको बाद में दिखाएंगे. सर का भी बड़ा फेवरेट वीडियो है वो. I increased my raw material storage space by 48% and my finished product storage space by 315%. I never, मैंने कभी प्रॉफिट के तरफ नहीं भागा इस कोर्स को करते वक्त और इस कोर्स के बाद. I only and only work towards implementation. जब जीएम साहब ने बोला कि सर मैं जुगाड़ पे चला रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मैंने उनको बोला 6 महीने प्लांट बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं है. We'll feed you guys, we'll give you your salary, no need to run the factory. बीसीआई का कोर्स तो अब मैं लॉन्च करके ही रहूंगा. फैक्ट्री बंद नहीं हुई, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं क्या हुई. I have taken each and every word uttered from RJ sir's mouth as the gospel truth and not questioned anything that he said. My entire staff of 25 people have attended the manifestation class of RJ sir 2 times in Delhi. Guys, you can keep giving your comments. I'll answer them later. I'm not being able to
आप comments and talking, so don't mind. मेरे 25 लोग 2 बार राहुल जैन जी के मैनिफेस्टेशन क्लास 2 बार ही अटेंड किए दिल्ली में। मैंने एक चीज जो इस कोर्स से मेरा सबसे बड़ा टेक अवे वो ये था कि आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग माय पीपल विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर एंड एवरीथिंग सीम्स टू हैव चेंज्ड। मुझे ये बात बिल्कुल मेरे जहन में घुस गई है कि ये वो हार्ड मास के लोग हैं, जैसे मैं हार्ड मास का आदमी हूँ। इनको उन्हीं चीजों से दर्द होता है जिनसे मुझे होता है, इनको उन चीजों से खुशी मिलती है जिससे मुझे मिलती है। इनकी वही अपेक्षा है जो मेरी अपेक्षाएं हैं। सो वंस यू रियलाइज दैट, your entire psyche will change, their entire psyche will change, because it is not only systems which are running the organization, it is a human being running these systems which is running the organization. हमारे यहाँ 78 checklist और 65 FMSs up and running है. Am I right, Sachin? Sachin ji? Yes sir, yes sir. Right. 78 checklists and 65 FMSs, they are my lifeline. I cannot run. दो दिन के लिए जो इंटरनेट डाउन हुआ था आज से 8-9 महीने पहले, पूरी फैक्ट्री मेरी ठप हो गई। तो इनके पास प्रिंट आउट पड़े थे, तो सारे एफएमएसएस के सारे स्टेप्स प्रिंट आउट में निकाल के इन्होंने भर के तब फैक्ट्री चलाई है। They have become so system dependent and it is so beautiful. Let me explain a little how the implementation of this course has impacted my factory and my people. ये कोर्स जब मैंने इम्प्लीमेंट किया तो ये किस तरह से मेरे और मेरे लोगों को इम्पैक्ट किया। Is my voice not clear, guys? Clear. All right, sir. All the people in the organization have become one. All the departments are integrated. Everybody, including my senior staff, has started coming on time. Everyone is always busy. सबको अपने KRS पता है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे उनके KRS पता है। We have automated all the systems, and everyone has their set jobs, and they do only that and are supremely tied up. मेरी EA मीनू जी, अब मुझे बड़ा शर्म आता है उन्हें EA बोलने के लिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देख रही हैं, HR खुद पूरा देख रही हैं, लाइजनिंग पूरा 108 उत्तर प्रदेश में प्लांट है, तो लाइजनिंग तो बहुत तगड़ी है, तो करनी होती है। तो ये पूरे 108 डिपार्टमेंट्स में खुद जाके बैठ के घूम के सब करती है। She has a 10-member MDO comprising of PCs, DEOs, CRMs and DMEs directly reporting to her. She is also looking after all the checklists and FMSs. My planning is not anymore for this week or next month. Our production, sales and raw material planning is now for a minimum of 60 days, and it is closely monitored by my people and me. मैं 60 मिनट हफ्ते में बैठता हूँ मार्केटिंग और परचेज के लिए। I am not afraid to lose out on anyone, क्योंकि सारे लोग अपने आप को डिस्पेंसेबल बना दिए हैं FMSs और चेकलिस्ट के बारे। कोई जाए कोई आए, doesn't make me any difference now. My GM, जो GM साहब ने जो जुगाड़ के बारे बोला था, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना के बारे में बाद वो क्विट कर गए, क्योंकि उन्होंने ये मुझसे बोला कि एक लेडी कैसे, मैं एक लेडी के अंडर कैसे उसको रिपोर्ट कर सकता हूँ, HR में या एडमिन में या लाइजनिंग में। तो मैं मीनू के साथ एक और लड़की को ले आया कि अब तुम मीनू को हेल्प करोगी HR में और प्लांट में ही बैठोगी 24 घंटे। एंड GM साहब हैज क्विट द जॉब, but I'm not afraid because 40,000 parameters of the plant are noted every single day. Over 300 help tickets are issued daily to all my production guys who are sitting over there. The production manager has a CTC of now 34,000 rupees. He's been with me for about 25 years and he's quite capable of running the things on his own. I don't need a general manager to run this factory anymore. My staff was not affected by Corona because we had already switched on to Google Sheets and Zoom meetings by June 2019, and my entire MDO वैसे भी अपने घरों से 3 दिन हफ्ते में काम कर रहे थे। मैंने अपना दिल्ली का ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि वो एक वेस्ट ऑफ टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मनी है। मेरे घर में एक छोटा सा कमरा ले लिया है, वहीं पे मैं अपना ऑफिस बना लिया है। ऑफिस में किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं खुद ही बैठ के अपना थोड़ा बहुत कुछ करता रहता हूँ। बाकी मेरे लोग सारे फैक्ट्री में बैठते वहीं से काम करते। On the personal front, over the last 3 years, I have had innumerable vacations in the past 3 years, each ranging between 6 to 10 days. I have not missed a day of workout.
I was forced to give up my, मैंने अपने सारे दोस्त जो पिछले 15 सालों में बनाए, मैंने सारे दोस्त गिव अप कर दिए। मैं फोर्स हो गया गिव अप करने के लिए, क्योंकि मेरी मेंटल थॉट उनके मेंटल थॉट से मिल ही नहीं रही थी। और अब मैं 4 ग्रुप्स का एडमिन हूँ, सारे सोशल ग्रुप्स हैं, गोल्फर्स भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, और मैं अपने स्कूल के दोस्तों के पास वापस चला गया, जिनके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है। So we are 20 guys and girls and we really have a good time. So my entire friend circle changed from lafunters to all business oriented super achievers people whose company I'm really enjoying. I have been inducted into EO Gurgaon. It's an entrepreneurs organization. It's a very prestigious thing. So I've been inducted into EO Gurgaon. During the lockdown period, I have conducted manifestation classes. मैं मैनिफेस्टेशन क्लास कंडक्ट किया 2000 एंटरप्रेन्योर्स के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, राहुल जी के ब्लेसिंग्स के साथ. And I have started an employee empowerment program known as Coffee with Anshuman, in which I am empowering employees whose salaries are maybe less than 50,000 rupees because they cannot approach a Rahul Jain or G or people like him. So I want to give them what Rahul Ji gave me, which is a zest to lead life. I am also undertaking training to become a life coach under Mr. Alan Cohen, who co-authored Chicken Soup for My Soul. I am also pursuing a very serious one-on-one share class, which we do 5 days a week and which will become a parallel business for my family. All this during the lockdown since last year. मैं कोई भी कोर्स लेता हूँ, और ये मैं बड़े गर्व से कह रहा हूँ, ये प्राइड के साथ नहीं कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, मजबूती के साथ कह रहा हूँ कि हर टीचर मुझे टेस्टिमोनियल के लिए जरूर बुलाता है कि अंशुमन एक बार आके बात कर ले भाई. I mean, this once aspiring, wanting to be a national level golfer is giving a business related speech in front of accomplished entrepreneurs like yourself right now. What else could be a greater proof of the good of this cause? From becoming the black sheep of the family, I'm now revered and treated with a lot of honor and respect everywhere I go, especially within my family. मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, जिनसे मैं हफ्तों मिलता नहीं था, सेम घर में रह के, वो मेरे सबसे क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट्स और मेरे बेस्टेस्ट फ्रेंड्स हो गए हैं. मेरी परिवार मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती है, और कोई भी डिसीजन बिजनेस या पर्सनल अब इस परिवार के बड़े बेटे से बिना पूछे वो नहीं करते. पहले क्या था ब्लैक शीप मतलब? हाँ जी, ब्लैक शीप मतलब पहले क्या था? तो ब्लैक शीप मतलब जब आप खुद ही सब चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, and your life becomes just about partying and drinking and having a good time, and instead of doing work you are only pursuing to be a national level golfer in the last 10 years. Why would anybody respect me, sir? I was running away from the thing that I was supposed to do. 19th April 2018 changed my entire life, sir, and there is no doubt about that. What was the increase in turnover? I'll just tell you guys what my increase or decrease in turnover was. I mean, at the end of this whole charade, you only realize one thing, that सारी खुदाई एक तरफ और परिवार से जो इज्जत मिलता है ना, वो एक तरफ. The kind of respect I have started getting from my younger brother, I cannot even tell you. पापा सारा काम छोड़ दिए हैं पिछले 2-3 सालों में. सब चीज वेदांत और मुझे दे दी है. He is in the Limca Book of Records for playing golf. Now he's coming in the Guinness Book of Records also. My mother spends all her time holidaying and spending time with the grandchildren. हमारे फैमिली में कोई डिस्कशन नहीं होता है पैसे के बारे, बिजनेस के बारे, ग्रोथ के बारे, या बिजनेस अच्छा नहीं चलने के बारे. हम लोग डाइनिंग रूम में और एक बार घर में आने के बाद ये सब बातें डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि सर ने हमें एक चीज बहुत अच्छी तरह से, और हमारे माँ बाप को भी एक चीज बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया था कि कर्म करो, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, मगर वो कर्म उचित कर्म होने चाहिए, और वो उचित कर्म राहुल जी has given to us. Feeling bloody wow about myself as I'm enjoying life and every moment of my life ever since I've started this course. मैं पहले अपने वेकेशंस प्लान करता हूँ, और उसके बाद मैं काम के बीच में ब्रेक लेता हूँ. मैं अपने ब्रेक के बीच में काम करता हूँ. ये फिलॉसफी राहुल जी ने सिखाई है, बट वो नहीं फॉलो करते. I have gone mad telling him to go for a holiday. I would like to share my greatest reason for success in this course, which has been my scheduling, and show you some samples of my schedule. Sir, can I please show them some samples of my schedule? Yes.
थैंक यू सर। सचिन, मीनू आप एक्सप्लेन करिए। ये कंप्यूटर कंप्यूटर आप अभी भी नहीं ठीक से चलाते, ये लोग बना लेते हैं सब। सर मुझे गूगल शीट का जी नहीं आता, गूगल फॉर्म का जी नहीं आता। मेरा कंप्यूटर अनिल खोलता है, जो मीनू का ये है, मैं बोलता हूँ भैया दिखा दो इसको, खोल दो मेरे लिए। आई स्वेयर आई एम अ मास्टर एट एक्सेल, बट आई हेट दिस गूगल शीट एंड गूगल ड्राइव। Sachin has been doing it for the last 3 years. Great. I have no idea, sir, about this. थोड़ा बता दो क्या है ये भैया। गुड आफ्टरनून सर। ये हमारा जो शेड्यूल होता था वो सुबह 9 बजे से था, और पहले मॉर्निंग में 5 o'clock से शुरू होता था। धीरे धीरे इसके टाइमिंग्स कम हो गए, और मैं आपको अभी लेटेस्ट दिखाती हूँ। इसमें आप देखिए टिल 6:15 तक, 6:30 तक था। और आरजे सर, अब आप देखिए अंशुमन सर कितना काम कर रहे हैं। टाइमिंग्स देखिए, और टोटल हार्डली 1 and 1.5 आवर का काम होता है इनका। इससे भी कम होता है, इससे भी कम होता है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग, ये जो सल्फा एंड मार्केटिंग, ये कभी 10 मिनट्स में, कभी 7 मिनट्स में ही खत्म हो जाता है। मैनेजमेंट का मीटिंग भी 15 to 20 मिनट्स में ही खत्म हो जाता है। Go back to the scheduling for a second, guys. Let me just tell you one thing. बड़ा वाला scheduling on करना जरा। Without this, my life cannot go on even today. I have scheduled my entire life, my vacation, what I'm going to do in the next 60 days, 90 days, 3 months, 1 year on the Google Calendar. And that is something that was just the most mind-blowing thing in my life. The amount of activities that I do, the amount of things that I'm involved in, and I'm doing it all successfully. And I'm not sure, मैं ये बात आपको showing off के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ। आज जब सर ने इनवाइट किया तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज लेके जाएं इस कोर्स से। मतलब शेड्यूलिंग has been my biggest strength. There is no life without scheduling, and I've mastered this scheduling now. Very nice. I would like to share the business results. देखिए मैं ये लास्ट के लिए रखा था business results आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक्चुअली अप होता है, डाउन होता है, बट मेरी जिंदगी 8-10 चीजों के बीच में बटी हुई है। तो कभी धंधा नहीं चलता तो हेल्थ चलता है, हेल्थ नहीं चलता तो क्लासेस चलती है, मेरी क्लासेस नहीं चलती है तो मैं जो क्लासेस दे रहा हूँ वो चलती है। तो मैंने एक ही चीज पे अपना कंसंट्रेशन नहीं रखा है। बट फिर भी हम लोग सब यहाँ धंधे वाले, धंधे के लिए बैठे, तो मैं आपको अपने धंधे के बारे में बता देता हूँ। आई डिडंट गिव अ डैम बिकॉज ये नहीं, जरा पीछे जाइए प्लीज। व्हेन आई टेल यू देन, मैंने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन इस कोर्स के लिए काम किया है। आई डिड नॉट गिव अ डैम अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, और मुझे नहीं पता कि ये प्रॉफिट और ये टर्नओवर कैसे बढ़ा है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड 5 रुपए केजी में बिकता है और पानी 20 रुपए केजी में बिकता है। ये है औकात मेरे प्रोडक्ट की। 3 नए प्लांट्स आ गए पिछले 1.5 साल में 100 किलोमीटर के रेडियस में, और मुझे आई हैव नो आइडिया दैट इन स्पाइट ऑफ दीज वेगरीज why the company has done so well. And this is a public limited company. The published results are there. I can show it to you. Zara दिखाएंगे please, Sachin ji. So 2017-18 से मैंने कंपेयर किया 17-18 को, मेरा टर्नओवर 42.44% बढ़ा, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी 215% बढ़ा, मेरा एसिड का प्रोडक्शन 1% से भी कम बढ़ा। 2019-20 और 18-19 के बीच में टर्नओवर 3.5% बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी 215% के ऊपर 44% बढ़ा, और एसिड का प्रोडक्शन 16% बढ़ा। 2020-21 और 19-20 के बीच में मेरी प्लांट मार्च 25 से जून 25 तक बंद हुई, 3 months। तो 9 महीने मैंने प्लांट चलाया, तो मेरा टर्नओवर घट गया 29%। सर, आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग, my profit went up by 21% over 44.41%, and the asset production has gone down by 28%. These are absolutely genuine figures, and I don't know how it happened. आरजे सर, मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यूनिवर्स को, क्योंकि मैंने पिछले साल ही कह दिया था कि पैंडेमिक में I'll be making more money than what I have done in the past few years. I'm spending all my time developing myself spiritually, which has no direct correlation with my plant. Rampur Fertilizers Limited. Lastly, I would like to leave you with my best practices, which has helped me. Again, I'm not. अरे सर, वो FMS और चेकलिस्ट दिखाने हैं? हाँ दिखा दो प्लीज।
बताइए सर कौन से दिखाने हैं, उसके बाद आई विल गो ऑन टू दिस। कौन से दिखा रही हो मीनाक्षी? जरा अपना वीडियो ऑन कर लो प्लीज। सर बताइए क्या दिखाना है, आप ही बता दीजिए। चेकलिस्ट, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी चेकलिस्ट क्या है मीनाक्षी? सर ये ट्रांसपोर्ट सेफ्टी चेकलिस्ट है। जब सर एसिड की टैंकर जो आती है उसको हमारे जो मिस्टर कुशवाहा हैं वो वहाँ पे जाके उसको चेक करते हैं कि सब चीजें पैरामीटर दिखाना सचिन इसका। ये सारे पैरामीटर्स वो चेक करते हैं कि ड्राइवर जो है वो ड्रंक तो नहीं है, और टॉप क्लोजर, बॉटम वॉल, सारी चीजें उसको वो चेक करते हैं। गूगल फॉर्म के थ्रू वो भरते हैं। अगर इनमें से कोई चीज रेड हो जाती है तो उसके ऊपर वो टैंकर कभी क्लीन नहीं होता है या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट वो नहीं देते हैं, तो हम उस टैंकर को वापस भेज देते हैं क्लीनिंग के लिए, और इस पे फिर पीसी हर टिकट रेज कर देती है जीएम को। वेरी नाइस। तो आपका हर टैंकर चेक होता है, हर टैंकर? जी सर, हर टैंकर चेक फोटो होता वोटो है। दिखाओ यार, फोटो वाला एफएमएस दिखाओ ना। वापस जाना। इसमें कैसे पता लगता है कि टैंकर ठीक से चेक हुआ कि नहीं हुआ? कोई गलत लिख दे तो? नहीं सर, वो जो है वो सारा उनका एक पैरामीटर्स है, वो उनके पास होता है, उसके थ्रू वो सारा चेक करते हैं। Okay. और कुछ मेजरमेंट उनका होता है, वो लेके उसको चेक कर लेते हैं। ओके, गो बैक। यस सर। सीआरएम डिस्पैचेस कोई एक वो इनका दिखा है चेक, वो साफ सफाई वाला चेकलिस्ट दिखा है कोई सा? गनमैन का दिखा दें सर। गनमैन का दिखाओ, तो समझाओ भी थोड़ा सा। जी सर। They are showing you all the easy checklists, huh? They also सर हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका रात में वो लोग राउंड्स लेते हैं, तो उनका 6 स्टेप है और 6 राउंड्स होते हैं। तो अराउंड 8:30 उनका राउंड शुरू हो जाता है, और वो लोग एक स्टेप से दूसरे स्टेप के फोटोग्राफ्स जो गूगल फॉर्म के थ्रू फिलअप करते हैं उस पर 10 मिनट्स का गैप होता है। और फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड के बीच में हमने उनको 60 मिनट्स दिया है, क्योंकि वो लोग डिनर करते हैं। उसके बाद सारे राउंड्स के बीच में 45 मिनट्स का गैप है। तो पीसी इसमें क्लिक करके देखती है फोटोग्राफ्स। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, इसमें टाइमिंग्स भी शो हो रहे हैं। और यहाँ पर पीसी अगर देखती हैं कि पिक्चर क्लियर नहीं है और टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहा है, इसमें जो टाइम दिया है इस टाइम से लेके 10 मिनट के अंदर उनको पिक्चर अपलोड करना होता है। हमने 10 मिनट इसलिए दिया है कि अगर नेटवर्क इशू है तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैन जहां जहां उसको 4-5 जगह पूरा गोल घूमना होता है, तो हर जगह जाके अपनी फोटो खींच के वो लगाता है इस पे। राइट सर, वो गनमैन फोटो खींचते हैं, और जहां जहां सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उस टाइम में जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे हैं, वो सारी चीजें हमको पता चल जाती है। टाइम स्टैम्प लगा के आ जाता है इस पे। हाँ जी सर। वेरी नाइस। तो और हमने इसका जो गूगल फॉर्म बनाया हुआ है हिंदी में ही है वो, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ज्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। कुछ लोग 5th हैं, कोई 8th तक पढ़े हुए हैं, और कुछ सिर्फ हिंदी आता है, उनको इंग्लिश नहीं आता। तो हमने गूगल फॉर्म भी हिंदी में बनाया हुआ है उनके लिए। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। वापस जाइए जरा। मीनाक्षी, वो हम लोग जो लेटेस्ट अभी बनाए ना गेस्ट हाउस वाला, सर हम एक गेस्ट हाउस बना रहे हैं रामपुर में, and I'm making it beautiful. So we made a little checklist of how we running that guest house, the entire construction. Should I show that? Because they'll get some idea of purchase from that. They'll get some idea of how people are coordinating with all the departments. दिखाओ। वो सचिन, यस सर। आप एक्सप्लेन करिए। सर ये हमारा गेस्ट हाउस का एफएमएस है। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे कोई मेटेरियल की रिक्वायरमेंट आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाता है। तो हमारे जो सिविल इंचार्ज है, अपना परचेज इंचार्ज, वो अपना उसका व्हाट्सएप का मैसेज लेकर यहाँ पे रिक्वायरमेंट अपडेट कर देते हैं। ये इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट आती है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, 1 स्टोन ग्रेड 20 mm, 2 डंपर, 2 कोर्सेंट, 2 डंपर का रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद फिर ये व्हाट्सएप मैसेज अपना परचेज डिपार्टमेंट की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, इसको सिग्नेचर करा के अपना, कि परचेज डिपार्टमेंट इसको गो ऐड करे। उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट को 2 दिन का समय मिलता है कि वो इंक्वायरी फ्लोट करके वेंडर को भेज दे अपना पीओ वगैरह।
तो उसमें फिर ये जो हमारे जीएम होते हैं उनका भी अप्रूवल इंक्लूड रहता है 48 अरे आवर्स। भैया फोटो भी तो दिखाओ, कितना बोरिंग करती हो। यस सर, वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं? यस सर, ये इनके सिग्नेचर हो जाते हैं यहाँ पे। तो अच्छा। हैंड ओवर करते हैं परचेज डिपार्टमेंट को कि हमने आपको हैंड ओवर कर दिया, आपको ये मेटल मंगाना है अभी यहाँ पे गेस्ट हाउस के लिए 48 आवर्स में। वेरी नाइस। और उसके बाद सर ये 48 आवर्स में अपना इंक्वायरी फ्लोट वगैरह करके जीएम से अप्रूवल लेके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं वेंडर की तरफ को पीओ। ये सब रिक्वायरमेंट रहती है जो वेंडर को भेजते हैं अपना, ये पीओ नंबर वगैरह, ये बेसिक रेट, क्वांटिटी, मेजरमेंट, जीएसटी। आगे? यस सर। उसके बाद यहाँ पे सर जब वो मेटल यहाँ पे रिसीव हो जाता है तब स्टेप 5 में अपडेट कर देते हैं उस चीज को कि मेटल फैक्ट्री में रिसीव हो गया है। उसके बाद और स्टोर पे इन्फॉर्म कर देते हैं, फिर स्टोर वाले यहाँ पे अपना गेट इनवर्ड लिंक वगैरह अपडेट कर देते हैं। दिखाओ। यस सर। और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लो, थोड़ा डेटा दिखेगा। यस सर, ये पंजाब ब्रिक्स से वो ब्रिक्स आई थी यहाँ पे बाय हैंड, उन्होंने रिसीव करके ये उन्होंने यहाँ पे अपडेट कर दिया स्टोर वालों ने। ये थोड़ा डेटा मैं ऊपर का दिखा देता हूँ सर। जब लेट हो जाता है तो ये रेड हो जाता है सर, यहाँ पे जब लेट कर देते हैं अपने काम को। ओके, आगे दिखाइए। जी सर, यहाँ पे सर ये अमाउंट का अमाउंट की डिस्क्रिप्शन है, जो पीओ अमाउंट था अपना वो अमाउंट क्या था, और जब एक्चुअली बिल हमने रिसीव किया उसका अमाउंट क्या था। यहाँ पे वेरिएशन अमाउंट शो कर जाता है, जो पीओ अमाउंट और बिल अमाउंट में जो भी वेरिएशन रहा था अपना वो यहाँ पे अपडेट कर देते हैं जब बिल की कॉपी आ जाती है। और यहाँ पे जो मिस्टर सिविल इंजीनियर है वो यहाँ पे नोट डाल देते कि वेरिएशन का रीजन क्या रहा था। 60 ml स्टील रिसीव इन शॉर्ट क्वांटिटी, तो इस वजह से शॉर्ट क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट वेट, तो इस वजह से अपना वेरिएशन हुआ था यहाँ पे अमाउंट का। ओके, आगे? जी सर। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट के टर्म्स खुल जाते हैं, जब पीओ भेजा था कि पेमेंट कितना एडवांस जाएगा, कितना क्रेडिट में रहेगा अपना यहाँ पे पेमेंट। तो जो एडवांस पेमेंट रहता है तो पीओ के टाइम पे चला जाता है, और एक क्रेडिट पेमेंट जब आप बिल रिसीव हो जाता है क्रेडिट डेज के बाद यहाँ पे अकाउंट में बिल आया था, फिर वो पेमेंट कर देते हैं अपना, और यहाँ पे बिल अपडेट कर देते हैं वेरीफाई करके। ये वेरीफाई किया उन्होंने बिल, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया अकाउंट डिपार्टमेंट में, इसमें जीएम वगैरह सभी के साइन हो जाते हैं। ये एक वैसे रफली बिल है, मैं आपको प्रॉपर बिल दिखा देता हूँ। ये भी ऐसे सर बेसिकली मैं कोई काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एफएमएस बना देता हूँ, और एफएमएस का प्रोसीजर इतना साइंटिफिक है कि मेरे लोग अपने आप ही काम करते हैं। चेक साइनिंग अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, और राघवेंद्र ही सब चीज खुद करता है इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, और एक ही डीएमई है, हम जैसा चीज चाहते हैं वो वैसा चेंज कर देता है। एंड इट्स जस्ट सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस बिकॉज I really don't know how the construction is going on in the factory. I'm just part of the WhatsApp group and I'm only interested in seeing the photographs. These guys do everything. They call for the material. They don't need my approval for anything because they said, sir, इतना लगेगा। मैंने कहा इतने पैसे लगेंगे, इतना पैसा सैंक्शन, अब आप करो जो करना है। मुझे इतना पता है कि मेरे यहाँ मटेरियल आ रहा है, मेरे यहाँ जिस मटेरियल का मैंने पैसा दिया है वो मटेरियल आ रहा है, जिस क्वालिटी का दिया है वो आ रहा है, हर एक रेट नेगोशिएटेड है टू द टी। मैं चैलेंज कर सकता हूँ किसी को भी दुनिया में कि वो मुझसे अच्छा रेट नहीं ला सकता, जहां मेरी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल जीरो है सर। मैं कोई इंडेंट नहीं साइन करता हूं, मैं कोई परचेज नहीं देखता हूं, कुछ भी नहीं देखता हूं सर। एंड यू नो दैट सर, बिकॉज यू नो हाउ मच आई हैव बीन हॉलिडेइंग। वेरी नाइस। एंड एक बार वो प्रोडक्शन की भी दिखा लो, और वो गार्ड अगर वो सेम फोटो अपलोड कर ले बार बार तो क्या होगा? उसमें हेल्थ टिकट ट्रेस हो जाता है, सीआरएम जो है वो पीसी जो है वो चेक करती है कि सेम फोटो तो नहीं है, और टाइमिंग्स आ रहे हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस टाइम पे फोटो उन्होंने खींचा है। फोटो दिखाओ जरा। फोटो के ऊपर भी तो टाइमिंग है मीनू। हाँ जी सर, उसी पे ही टाइमिंग्स आ रहे हैं। वो भी तो बोलोगी ना। यस सर। नीचे ये टाइम स्टैम्प है, नीचे जाना। जी सर। यस सर। ये टाइम है और इस पे डेट भी आ रहा है, तो वो एक ही फोटो को रिपीट नहीं कर सकते हैं सर। वेरी गुड। अब मेरे को प्रोडक्शन 1 मिनट दिखा दो जरा। जी सर। आपके कितने चेकिंग पैरामीटर्स हैं, क्या चेक होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, क्यूसी कैसे होता है प्रोडक्शन में? क्वालिटी कंट्रोल। यस सर। सर ours is a continuous process plant. आप एक तरफ सल्फर डालेंगे, इट्स अ बॉक्स टॉप प्लांट, दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा 98.4% कुछ निकल ही नहीं सकता है, बट फिर भी उसकी सारी टेस्टिंग लेबोरेटरी में होती है, और हर डिस्पैच जो होता है उसमें लैब रिपोर्ट लग के जाता है, वो भी हम आपको दिखा देंगे, सीआरएम में है।
और वो डायल्स भी दिखा दो, डायल्स आपने मेरे को एक बार दिखाई थी, डायल भी चेक होता है। हाँ वो तो डायल चेक दिखाइए आप लोग। एयर प्रेशर सर, एयर प्रेशर। हाँ वही डायल। Imagine my entire thing is in Hindi in the factory because my people don't really understand English, and we've just everything is in Hindi. I mean, it's such a pleasure, I cannot tell you. यस सर। तो हर बार डायल का प्रेशर कितना है, हर बार कितने बजे से कितने बजे, ये कैसे होता है, हर कितनी देर में ये डायल अपलोड करना पड़ता है? जी सर, हर 2 घंटे में चेक करते हैं अपना। अभी सर ये 2 शिफ्ट में करा रहे हैं अपना, 6 से 2 में एक बार प्रेशर चेक होता है, फिर 2 से 10 में प्रेशर चेक होता है अभी। और ये कौन चेक करता है सारा? ये सर डेटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं इसको चेक जी। उस जितने प्रेशर पे चल रहा होता है, फिर उसके हिसाब से रेटिंग हमारे यहाँ पे कैलकुलेट होती है कि इतने प्रेशर पे चल रहा है तो इतना पैरामीटर होना चाहिए, और अगर हमारा 200 से ज्यादा प्रेशर पे तो फिर पैरामीटर हमारे चेंज हो जाते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे रेड ग्रीन हो जाता है अपना, और जो भी अपना रेड होता है उसके लिए फिर अपना जो पीसी होता है वो हेल्प किट हमारे उसको प्रोडक्शन हेड को हेल्प किट इशू कर देते हैं, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं फिर अपना जी। एक यहाँ पे जैसे फोटो भी, वो क्लीन वगैरह की फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अगर कुछ एरिया में उनको गंदगी वगैरह दिखती है तो ये हम यहाँ भी डाल देते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सारा हर चीज का एक एक चीज जो है, ये सारा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है? यस सर, ये प्रोडक्शन की सर हमारी ये अपना 58 चेक लिस्ट है जो प्रोडक्शन की हमारी चेकिंग होती है अपना टोटल। ये एपीटी टैंक, स्टीम जैकेट लाइन, डीटी, बर्नर, एसओटी, बॉयलर, ये सारे। सो हर चीज चेक होती है? यस सर, ये हमारे सारे पैरामीटर चेक होते हैं। अपना लोडिंग पॉइंट तक भी अपने चेक होते हैं जहाँ पे अपने टैंकर लोड होते हैं। लोडिंग पॉइंट दिखाना। ये सर एक बार चेकिंग कराते हैं अपना लाइन लीकेज, अपना लोडिंग लाइन का, अपना ये वाल्व वगैरह, 2 फ्लैंजेस वगैरह, लोडिंग नोजल, लोडिंग पाइप वगैरह, कुछ भी अपना लीकेज तो नहीं है अपना कहीं पे। वेरी नाइस। और ऐसे ही रिटेल वाले आप लोग सब अपना एक जगह, हर टॉयलेट साफ होने के बाद फोटो खींचेगी? हाँ जी, हाँ जी। यस सर। वो क्लीनिंग का दिखा रहे हैं। क्लीनिंग का दिखा सर। सर ये क्लीनिंग चेकलिस्ट है? यस सर, सर ये क्लीनिंग का है हमारा। इसमें वॉशरूम के फोटोग्राफ्स वगैरह भी जो हैं वो जाके हमारे जो एक टीओ हैं वो हर वक्त जाते हैं वहाँ, फोटोग्राफ्स खींचते हैं और अपलोड करते हैं, और हमारी जो पीसी है उसको चेक करती है एवरीडे, और कहीं पे उनको अगर गंदगी पाई जाती है, देखती हैं वो, तो उस पर वो हेल्प टिकट इशू कर देती हैं। तो ऐसे हमने सारे ऑफिसेज वगैरह, हर एरिया हमने डिसाइड किया हुआ है कि कितने वॉशरूम हैं, और ऑफिस में जितने भी टॉयलेट्स वगैरह हैं सबकी क्लीनिंग ऐसे ही होती है। तो आपका कोई टॉयलेट कभी गंदा नहीं हो सकता? मतलब कोई जैसे पीसी देखती है इमीडिएटली वो हेल्प टिकट रेज कर देती है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। गो बैक। यस सर। ओके, वो आप एक बार दिखाइए, वो आपने बीच में वो बनाई थी ना, दैट वाज रियली नाइस। एक बार आपने मेरे को दिखाई थी, वो जो कोविड में आप कर रहे थे टेस्टिंग। कोविड का भी बंद कर दिया है। कोविड का भी हमने फिलहाल बंद किया बस। दिखा तो दो ना पुराना दिखा दो अगर है। वेब्रिज, कोरोना का भी ये तो फोटोज नहीं है उसमें। यस सर, ये हमने स्टार्ट किया था अभी रिसेंटली, इसको हमने थोड़ा डिफरेंट वे में किया हुआ है। इसमें हम लोग जैसे कोई एम्प्लॉई हमारी फैक्ट्री प्रेमिसेस में आते थे, तो आने के बाद हम उनका टेम्परेचर, सबसे पहले वो हैंड वॉश करते थे। हैंड वॉश करने के बाद उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते थे कि आपको सर्दी खांसी तो नहीं है, और उनका टेम्परेचर लेते थे। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है और उनको किसी भी तरह से सर्दी खांसी नहीं हो रही है, उसके बाद उनको फैक्ट्री में जाने के लिए परमिशन देते थे और उनके फोटोग्राफ्स क्लिक किया जाता था। दिखाइए। अगर किसी को फीवर है तो उनको हम साइड। जी सर, चेकलिस्ट जल्दी दिखाने हैं। इसके बाद एक है लाइजनिंग, वो अपना रिश्ते वाला, एक अतिथि तुम कब जाओगे, और एक वो वाला दिखाओ, कपिल देव वाला दिखाओ।
ठीक है सर। और एक वो भी दिखाओ, जुगाड़ का दिखाओ, कपिल देव नहीं, जुगाड़ दिखाओ। जुगाड़ का नहीं। सर एक हमने जो हमारा लाइजनिंग है ना, हम रिश्ते बनाते हैं, तो हमने उसको रिश्ते, ठीक है जुगाड़ है ये। हमने क्या किया, हमें फोकलिफ्ट चाहिए था, हमने फोकलिफ्ट नहीं खरीदा 4.5 लाख रुपए का, हमने होंडा की मोटर बाइक खरीदी 60,000 रुपए की, 5,000 रुपए का ठेला लगाया, ब्रांड न्यू जुगाड़ बना दिया। अब उसमें आधा टन सामान इधर से उधर जा सकता है, सब टाइप का सामान। तो ये हमारा जुगाड़ का चेकलिस्ट है, फटाफट इसको समझा दीजिए। सर ये जो जुगाड़ है, ये जो इसको चलाते हैं पर्सन, वो एवरीडे जब भी जुगाड़ को वहाँ पार्किंग एरिया में रखते हैं, उसके बाद गूगल फॉर्म के थ्रू इसको भरते हैं। सारा हिंदी में बनाया हुआ है हमने ये। और अभी उसमें वो जो चीज़ सही नहीं है उसके बारे में बताते हैं। जैसे अभी मीटर इसका काम नहीं कर रहा था, तो 3 दिन काम नहीं करने के बाद फिर वो ठीक करवाया, उसके बाद फिर वो खराब हो गया, तो अभी रिसेंटली कल परसों ये ठीक हुआ है। मीनू इसको भरती कैसे हो? ये गूगल फॉर्म के थ्रू भरा जाता है सर। वो रवि तो भरता नहीं है, वो तो शीट पे भरता है ना, वो बताइए। नहीं सर, वो गूगल फॉर्म के थ्रू ही भरता है सर, हिंदी में इसीलिए बनवाया गया था क्योंकि मेरे पियोन का छोटा भाई है रवि, he does not know any Hindi, he is also the pandit in the temple, he runs this, he does the temple का काम and he uploads this from his mobile every day. वो अपने फोन से Sir, ही he doesn't know how to read and write. और इस पे जहाँ सही नहीं है, इस पे हेल्थ टिकट रेस कर दिया गया था अभी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ खुल नहीं रहा था, तो उस पे ये काफी टाइम लग गया इसको ठीक होने के लिए। तो अभी रिसेंटली उन्होंने ठीक करवाया है। इसके ऊपर भी एमडी सर ने एक हेल्थ टिकट रेस कर दिया था, जो इसके इंचार्ज हैं उनको हेल्थ टिकट रेस कर दिया था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इसके लिए, तो उन्होंने फिर कहीं से अरेंज करके मैकेनिक को फिर ये ठीक करवा दिया था। ये हमारे यहाँ हेल्थ टिकट के ऊपर भी हेल्थ टिकट रेस हो जाता है। दूसरा एक रिश्ते का मैं आपको दिखाती हूँ। सर अभी मैंने मीनू को यही बोला कि मीनू देखो, मैं तो कुछ देखता नहीं हूँ, कभी कभी 2-4 मुझे प्रॉब्लम्स दे दिया करो और मेरे तरफ से हेल्थ टिकट रेस कर दिया करो, लोगों को पता चले कि मैं भी देख रहा हूँ। ऐसा the delegation is to such an extent you can't imagine, and all information is like they don't need to run around everywhere, everything is available because of the Google Drive, everything, anything, all permutations and combinations of all kinds of data. My factory is running purely on data now. सर ये रिश्ते चेकलिस्ट, इसको हमने रिश्ते का नाम दिया हुआ है, लाइजनिंग का है ये। इसमें हम लोगों को ये पता चलता रहता है कि किस पर्सन को कब किन से मिलने जाना है। तो ड्यू टू कोरोना अभी हम लोग कहीं पे भी किसी भी ऑफिस में नहीं जा रहे हैं मिलने के लिए। अदरवाइज इसमें हम लोगों का डेट ओपन हो जाता है, तो उसके बाद पीसी रिमाइंड करवाती हैं जो भी फैक्ट्री पर्सन को जाना है कि आपको 1 हफ्ते बाद वहाँ पर विजिट करना है, आप अपना प्लान कर लीजिए। और इसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने की, वो वहाँ पे जाते हैं। किसी रीजन से अगर वो नहीं जा पा रहे हैं या जाने के बाद कोई पर्सन नहीं मिल पाए हैं, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और इसका ये सारा स्कोर जो है वो MIS में चला जाता है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और डिफरेंट पर्सन जो है फैक्ट्री पर्सन, वो लोग HODs, वो लोग जाके वहाँ पे उनसे विजिट करते हैं, मिलते हैं उनसे। अब तुमने वो खोला इसमें कोई फोटो? यस सर, फोटो दिखा दिया ना। अब आप जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने किया अतिथि तुम कब जाओगे, ATKJ, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हमारे फैक्ट्री आते हैं इतना परेशान हो जाते हैं, हमने उसका नाम ही रख दिया चेकलिस्ट का, अतिथि तुम कब जाओगे, कब जाओगे तुम। तो ये हमने बनाया है फॉर ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु कम टू आवर फैक्ट्री, इवन हाउ मच दे टेक फ्रॉम अस, इट्स ऑल इंफॉर्मेशन इज हिडन इन दिस, and what they have told us, what they have seen, how we have to change our approach, what are the things that we have to do. क्योंकि आए दिन कोई ना कोई आ जाता है, तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहता था, अब सब रिकॉर्ड है। ये HOD जो हैं वो इसको फिल करके बताते हैं कि कौन से पर्सन आए थे, किस डिपार्टमेंट से आए थे, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनके साथ में और कौन आया था, और हमारे यहाँ से जब वो विजिट पे थे तो हमारे यहाँ से कौन कौन पर्सन थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, और उनका मोबाइल नंबर वगैरह सारा मेंशन करते हैं, कितने से कितने टाइम तक वो लोग रहे हैं यहाँ पर, और जितने भी स्टाफ साथ में होते हैं उनके, वो लोग भी अपना साइन इसमें कर देते हैं। उसके बाद वो लोग नेक्स्ट स्टेप में कुछ मेंशन अगर वो करके जाते हैं तो वो वहाँ पे वो लोग लिख देते हैं उसको, ठीक है ना, CGM को जो दे रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे उनकी तरफ से अगर कोई नोट आता है तो वो भी हम इसी में ही मेंशन कर देते हैं कि अगर कहीं से उन्होंने कुछ बोला है तो, अदरवाइज तो कुछ नहीं, अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए तो हम मेंशन नहीं करते हैं उसके लिए। ओके ग्रेट एक्सीलेंट। अब इसको बंद कर दो गाइस। आपको ये समझ में आ गया, इनके पास सब कुछ है। कितनी प्रोसेसेस हैं ये सब कुछ? प्रोसेस कितने हैं, चेकलिस्ट कितने हैं? टोटल 142 सर। 142 क्या है सर? एफएमएस एंड चेकलिस्ट इंक्लूड है। ओके वेरी नाइस। तो अंशुमन, आपको ये अलाइनमेंट करके ये सब बनाने में और रोल आउट करने में आपको कितना टाइम लगा? So it took about a full 9 to 11 months while doing the course also, sir. So 9 से 11 महीने लगे इसको बनाने में, ये पूरा सिस्टम बनाने में? जी सर। वेरी नाइस एक्सीलेंट। और अब आप वेकेशन कर रहे हो सारा टाइम? आपको पता है सर, I keep trying to call you every week. I keep sending the pictures to you and ma'am. Nobody comes only. How irritated I am with you, sir. अभी कोविड का टाइम है, सारा का सारा टाइम गड़बड़ हो जाए। कपिल देव चेकलिस्ट क्या होती है? सर हमारे यहाँ पे एक्चुअली दो बंदे थे जो ना खुजरे लेबर थे हमारे यहाँ पे, हमने उनको परमानेंट बना दिया। ठीक है, they are very happy, we are very happy. They are all rounders. So everybody started using them, and then these guys started behaving as if they have become kings, and they were not doing anybody's work, they were not doing any work, and they were just enjoying. तो हमने कपिल देव चेकलिस्ट बनाया कि ये ऑल राउंडर है, तो कपिल देव ऑल राउंडर है, तो किसी को भी इनको यूज करना होगा तो पहले वो यहाँ पे डालेंगे कि उनको क्या काम है, एक बार दिखाओ, एंड देन दे विल यूज हिम। तो आजकल वो लोग दोनों खाली हो गए क्योंकि कोई डाल ही नहीं रहा कि उनको इनसे काम है, क्योंकि ये सब चीज अब मैनेजमेंट के नजर में आ गई है। मैंने सर आई थिंक साल भर हो गया इसको देखे हुए। वी हैव केप्ट इंटरेस्टिंग नेम्स बिकॉज आई फील that everybody thinks that work and business is you have to be very serious. I'm the most non-serious guy when it comes to my business because I like to enjoy my life. I like to make my people enjoy, and that is the reason, in spite of Corona, we never thought of Corona even once. My people and me partied, we enjoyed, and we made much more profit than what we've ever made in our entire lives, in spite of the plant being down for 3 months. Very so, we are attracting all the good things in life. So I don't understand why everybody has to be so sad in the business. Look at Rahul Jain ji, always bloody pumped up. We try to emulate him, in everything that we do. Very good जी, very good. Okay, so ये आप 4 AM उठते हो? सर अब मैं 5:20 पे उठता हूँ क्योंकि 4 AM सर इतना फोर्स नहीं है काम का। 4 AM किया था मैं, आई थिंक 2 साल किया था, बट लास्ट लॉकडाउन भी मैंने किया था 4:20। जब आप कोर्स कर रहे थे तो आपने उस समय रोज 4 AM उठते थे? 3:30 बजे उठते थे सर। 4 बजे से हमारा काम चालू हो जाता था, उसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते हो इसको, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त है सर। यू आर अलाइन्ड विद द यूनिवर्स, you have to open your neo-prefrontal cortex and you have to start thinking from here. This is the thinking brain, this is the thoughting brain. So you start thinking from here. You have to create it, boss. Somebody asked a question, do you create it? Yes, I created it on Excel, gave it to my people, taught them how to create it, and now they are creating. Very nice. तो आपको ऐसा नहीं लगा 4 डे के बाद कि मैं अपना 4 डे के बाद मैं खुद इंप्लीमेंट कर दूंगा ये सब और मैं खुद कर लेता हूँ? नहीं सर, ऐसा नहीं लगा सर। ये हाफ बेक्ड नॉलेज है। मेरी सबसे ये दरख्वास्त है, आप शेड्यूलिंग तो कर सकते हो 4 डे के बाद, 4 AM भी आप करना चाहते हो तो करो, कुछ दिन बाद आप बंद कर दोगे। यू मस्ट डू द 8 month, and this is the biggest investment of your life. So you still have the money back offer now after 2 months. हाँ वो सब some money back offer that he has after 2 months. So just try it for 2 months. Block 1.5-2 lakhs. I don't know what the course costs now, and do your thing. And if you feel it's worth it, carry on. Otherwise, go back home. No, it's the best course in the world. I mean, I can't even tell you. वो शशि कपूर ने कहा था मेरे पास माँ है, मैं कहता हूँ मेरे पास राहुल जैन है। Really मैं ये बात कहता हूँ। तो sir, I mean, life has just changed because of you. And I really request everybody over here. हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, आप लोग 309 participants यहाँ पे हैं। आप लोग इसलिए यहाँ पे कि कहीं आप अपने दिमाग में परेशान हैं कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, और मेरे यहाँ पे मैनेजर 4 दिन पे छुट्टी जा सकता है पर मैं नहीं जा सकता हूँ। Boss, that is the reason you are sitting here. Einstein said that if you take the same actions and you expect different results, that is known as insanity. So we have been taking the same actions for last 20-25 years in our businesses. It's time to make a change. Please make a change. Listen to me. Just for a period of 2 months.
play this gamble. It's going to change the rest. So now आपको इनिशियल रेजिस्टेंस आई थी टीम से जब सर, आप मैं कह तो रहा हूँ, जब मेरे जीएम साहब ने बोला था कि आप सर मैं चला रहा हूँ जुगाड़ पे, मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, फैक्ट्री बंद कर दीजिए 6 महीना, बीसीआई का कोर्स जरूर लॉन्च होगा। और 215% मैंने प्रॉफिट कमाया उस साल में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सर प्रोसेसेस ही नहीं पता, हमें इतना डर लगता है अपने फैक्ट्री में जाने में, वो कौन सी पर्चियां घूमती रहती हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं होता। हमारा जनरल मैनेजर यहाँ पे व्हाइट रंग का एनवेलप लेके बैठा हुआ रहता है। सर आज की डेट में, राघवेंद्र तुम हो क्या यार लाइन पे? राघवेंद्र जी आप हैं? आई डोंट नो वेयर ही इज। He'll tell you, sir, he started जब कंपनी में नींव खुदा था तब से, and he's become the GM commercial. He'll tell you each and everything that I've said is absolutely right. I mean, sir, आज की डेट में मुझे कोई नहीं धमका सकता। मेरा एक एम्प्लॉई आया, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एम्प्लॉई, and he said, sir, I want to quit. मैंने कहा क्यों करना चाहते हो? He said, sir, I want this much salary. मैंने कहा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर। सर उसी वक्त उसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। What I'm trying to say is that when you do this course, what happens is that we are so involved in the business, we are so involved in making the processes and the systems that your mind opens up. You know, boss, it's not only about business, it's about our life. मैं 43 का हूँ, 37 साल बाद मैं रहूंगा नहीं। मैं हर रोज अपनी जीवन इतना एंजॉय कर रहा हूँ। धंधा is a part of my life. There are so many more aspects to my life which have opened up after I did this course. And you know, धंधा becomes really easy after this course. But you have to work. 1-1.5 साल सब भूलना होगा, बीवी बच्चा माँ बाप सब भूल के आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। मतलब my mother was so upset with Rahul Jain ji, you cannot imagine, for 8 or 9 months because me and my brother were doing the course. और वो रोज कहती थी, और दीपिका मेरी ब्रदर की वाइफ है, वो कहती थी कि मतलब she threw him out of the bedroom for 3 or 4 months because he used to wake up at 4. She used to say, दोनों निशाचर हो गए हो, क्या कर रहे हो, दोनों भाई पागल हो गए हो। My mother said she lost both her sons for 9 months and now she is so happy. My entire family is just so integrated. It's unbelievable and everybody is enjoying so much. Yeah? Like, you know, I'm not Mr. Khaitan, I'm just Anshuman. My father is Mr. Khaitan. Please, thanks guys for all the respect. But you know, this course is the Bhagavad Gita of business for this country. You must listen to what Rahul ji says. After all, हम लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं, हमें ये लगता है हम अच्छा आदमी लेके आएंगे। सर अच्छा आदमी कोई नहीं होता, क्योंकि हम खुद ही अच्छे नहीं हैं। हमें पता ही नहीं धंधा क्या होता है, हमें किसी ने धंधा करना सिखाया ही नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मम्मी for example, my father taught me, his father taught him, his father taught him. So, you know, our fathers also really don't know how to do the business. They have learned by hit and trial only. Now, you have education business also. That's right, sir. And I have not completed my graduation. I'm class 12 pass. I ran away from both my colleges. I was very notorious in school and in college. I'm from modern Vasant Vihar. So, I mean, somebody asked कि मैं 1.5 करोड़ का टर्नओवर करती हूँ, तो क्या मैं एक कोर्स कर सकती हूँ? मैम, यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए वाले भी लोग बैठे हैं, पर वो यहाँ पे आके राहुल जी उनको नहीं इनवाइट किए हैं। उन्होंने ये इस 30-35 करोड़ रुपए वाले टर्नओवर वाले आदमी को इनवाइट किया है आपसे बात करने के लिए। सो इट रियली डजंट मैटर व्हाट योर टर्नओवर इज। पैसे से इज्जत नहीं मिलती, सर ने हमको सिखाया था, इज्जत किसी और चीज से मिलती है। बट यू नो, हमें ये लगता है कि हमने धंधा कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। सर जिंदगी झंड हो रखी है सबकी यहाँ पे। बिल्कुल, you must get out of this. Meenakshi, I'm very sorry. She's going to kill me. She told me, sir, झंड word मत use करिएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा. So I'm very sorry to all of you and to Meenu for using this word. But guys, दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग अपनी जिंदगी सुधारना चाहते हो तो इस कोर्स को करिए। धंधे के अलावा बहुत कुछ मिलेगा। अब ठीक है जी। So now let's sign up. आप वो कुछ आप बोल रहे थे, आप वो वीडियो दिखाना चाहते हो शायद। मैं छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। And believe me guys, whoever is not aligned with your father, get him also to do the course, because your life is about to change. Just embark on this journey, don't think about it. वो वीडियो दिखाइए मीनू जी, सचिन जी। जिंदगी की यही रीत है,
हार के बाद ही जीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी है सफर और बसेरा भी है, जिंदगी एक पल दर्द का गाँव है, दूसरा सुख भरी छाँव है, हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, Very nice. Excellent. So this is, thank you so much, Anshuman, for taking time out of your vacation and coming and being with us. Thanks a lot. And I hope you have all seen. So this is Anshuman's team. Now we just want to take a bow in front of everybody and say thank you very much to everyone. Very nice. Very nice. Thank you. Sachin, this is my so-called EA Meenu. She's become much more. Thank you. Wow. Very nice. Thank you, everyone. Thanks a lot. Lovely comments, sir. And I can't believe that in spite of Corona, you've got 300 students. Like mind-blowing, sir. You are really our inspiration, sir. Thank you, sir.